Hello students, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket sir. Today we are going to see exercise 1G from R.S. Agarwal. Your homework, we will be seeing major 1 to 8 sum first, and then later as it is divided into two parts, then we will be seeing major 9 to 18 sum. So part 1 exercise 1G major 1 to 8 sums. उसका first देखो, simplify उसमें फर्स्ट 2 raised to 2 by 3 multiply by 2 raised to 1 by 3. If you can see this, okay, base same है, power अलग अलग है, multiplication में है. So what we all have to do is simply add the powers. So this can be written as 2 by 3 plus 1 by 3. Okay, then 2 raised to LCM आ गया 3, 2 plus 1, 2 raised to 3 by 3. Answer 2 raised to 1, which is nothing but 2. बच्चों सिंप्लीफाई में सेकंड देखिए 2 raised to 2 by 3 into 2 raised to 1 by 5. अगेन सिंपल है 2 raised to 2 by 3 plus 1 by 5. ठीक है, when you have base same, powers different, in multiplication you simply have to add the powers like this, and that is equals to 2 raised to ये हो गया 15, ऊपर आएगा 2 5 10 और यहाँ पे आएगा 3. LCM ही लेना है, which is easy, 13 upon 15. So that's the end of major sum number first का second. Then see third one, 7 raised to 5 by 6 into 7 raised to 2 by 3, which is nothing but same methodology. 5 by 6 plus 2 by 3, LCM आएगा 6 to 5 plus 3 2s are 2 2s are 4. So your answer is 7 raised to 9 upon 6. इसको कट कर सकते हैं, जैसे बोला जाता है आप लोगों को, try to convert it into least prime factors. So this can be again written as 7 raised to 3 upon 2. Okay, क्योंकि 3 3s are and 3 2s are. Okay, and fourth उसी में देखो 1296 whole raised to 1/4 into 1296 whole raised to 1/8 का सॉरी 1 by 2. Okay, again देखो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग. So 1296 whole raised to 1 by 4 plus 1 by 2. LCM ले लेंगे तो 1296 whole raised to it is 4. ठीक है, और ये हो गया आप लोगों का 1 plus this is nothing but 2. So it is 1296 whole raised to 3 by 4. अब आप 4 to the power 4 करोगे तो 216 आएगा. 4 to the power 5 करोगे, 4 to the power 6 करोगे. ऐसे करते करते आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 6 to the power 4 करो. ठीक है, 6 to the power 4 करेंगे तो ध्यान से देखना. 6 6 36, 6 216. 216 into 6 कीजिए तो 6 6 36, 6 1 6 and 3 9, 6 2 12, 1296. तो ये है अपना 6 to the power 4 whole raised to 3 by 4. 4 4 कट, 6 का क्यूब, आंसर 216. So that's the end of your major sum number 1. Now moving ahead, major sum number 2 देखो, again simplify 6 raised to 1 by 4 upon 6 raised to 1 by 5. बेस सेम, पावर अलग अलग, डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स आर सबट्रैक्टेड. तो 6 raised to 1 by 4 minus 1 by 5. LCM आएगा 20. ठीक है, और ये हो गया 5 minus 4. ठीक है, आंसर 6 raised to 1 by 20. वेरी सिंपल है. Then second का second देखो बच्चों, ये है 8 raised to half whole upon 8 raised to 2 by 2. Again this is very simple. 8 raised to 1 by 2 minus 2 by 3. Okay, LCM आ गया आपका 6. तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4. तो आंसर इज 8 raised to minus 1 by 6, or you can also write it as 8 raised to 1 upon 8 whole raised to 1 upon 6. Okay, and third देखिए उसी में again simple है 5 raised to 2 by 3 upon 5 raised to
sorry, y raised to 6 by 7 upon y raised to 2 by 3. Same methodology we are going to see. minus 2 by 3. LCM आएगा 21. ये होगा 18 और ये होगा 3 7 2 7 14. So it is 5 raised to 4 upon 21 and that's the end of major sum number 2. Simple sums है. पहले दूसरे एकदम सिंपल. ठीक है. Now going for third one. थर्ड उसमें भी सिंप्लीफाई है. उसका फर्स्ट देखो 3 raised to 1 by 4 into 5 raised to 1 by 4. अब आप लोग देखोगे, अगर इसको देखोगे बेस अलग अलग है, पावर्स जो है वो क्या है, सेम है. तो ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर होल्स में आ जाएंगे. ठीक है. तो 3 into 5 is 15 और raised to 1 by 4. सेकंड देखो ऐसा ही है, उसी टाइप का है. 2 raised to 5 by 8 into 3 raised to 5 by 8. बेस अलग अलग, पावर सेम. तो 2 into 3 whole raised to 5 by 8 which can be written as 6 raised to 5 by 8. Answer to sum number second. और ये देखो थर्ड वन भी सेम वैसा ही है. 6 raised to half into 7 raised to half. So this is 6 into 7 whole raised to half which is nothing, 42 raised to half. Or you can also write it as under root 42. Okay बच्चों. Moving ahead, फोर्थ भी देखो सिंप्लीफाई. बहुत ही सिंपल है. पावर्स ऑफ पावर्स मतलब क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होंगे. फोर्थ का थर्ड देखो 3 raised to 4 whole raised to 1 by 4. Powers of powers are multiplied. This cancel, answer 3. Second देखो 3 raised to 1 by 3 whole raised to 4. 3 raised to 4 into 1 by 3. तो आंसर 3 raised to 4 by 3. थर्ड देखो बच्चों उसी में 1 upon 3 raised to 4 whole raised to half. So this can be written as, ध्यान से देखना, 1 raised to half and 3 raised to 4 whole raised to half. Then 2 ones are 2 twos are 1 and 3 का square is 9. So answer is 1 upon 9. Moving ahead. फिफ्थ देखो इवेल्युएट. इवेल्युएट में पहला है 125 whole to the power 1 by 3. अब try to bring it in such a way that powers can be cancelled. So this can be written as 5 cube whole raised to 1 by 3. 3 cancel. Answer 5. Then second 64 to the power 1 by 6. अगर याद नहीं आता है तो 4 क्यूब करके कर सकते हो, नहीं तो फिर ये हो गया 2 to the power 6 whole raised to 1 by 6. 6 cancel. Answer 2. Then third बच्चों 25 whole raised to 3 by 2. तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर whole raised to 3 by 2. This is 1 5 cube. Answer 125. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ देखो. फोर्थ इज 81 whole raised to 3 by 4. तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 to the power 4 whole raised to 3 by 4. ठीक है. 4 cancel. 3 cube. Answer 27. Moving ahead. फिफ्थ देखो 64 whole raised to minus 2. 64 whole raised to minus 2. This can be written as 8 का square whole raised to minus 1 by 2. 8 raised to minus 1 or you can also write it as 1 upon 8. And last उसी में देखो sixth one 8 raised to minus 1 by 3. This can be written as 2 cube whole raised to minus 1 by 3. 3 cancel. 2 raised to minus 1 which is nothing but 1 upon 2. So that's the end of major sum number 5. बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इस बार तो ऐसा होगा कि आप लोगों को वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल गेट योर आंसर्स ऑन ओन. अभी तक इतने सिंपल्स आए हैं. ठीक है. मूविंग अहेड. मेजर सम नंबर 6 इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. इफ a इज इक्वल्स टू, पहले तो ये ध्यान से देखना, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, देन उसमें फाइंड करो a रेज़ टू b प्लस b रेज़ टू a होल रेज़ टू माइनस 1. सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. तो 2 का क्यूब होगा, a की जगह 2, b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर होल रेज़ टू माइनस 1.
ओके 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 होल रेज़ टू -1 8 plus 9 is 17 whole raised to -1 which can be written as 1/17. Okay, simple. सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो then get your answer. उसी में सेकंड देखो 6 में सेकंड a raised to a plus b raised to b whole raised to -1. ठीक है, a raised to a मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब whole raised to -1. 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का क्यूब is 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का क्यूब इज 27 होल रेज़ टू -1 31 होल रेज़ टू -1 आंसर 1/31. ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. मेजर सम नंबर 7 देखो बच्चों, सिंप्लीफाई वापस से उसमें फर्स्ट देखो 81/49 होल टू द पावर -3/2. अब इन दोनों को ऐसा करो, ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के सम हो कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर पावर का जो डिनोमिनेटर है वो कट होना चाहिए. तो कैन आई राइट लाइक दिस 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिखूंगा और ये हो गया 7 का स्क्वायर होल रेज़ टू -3/2. अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना. 9/7 होल स्क्वायर ऐसा लिखूंगा एंड होल -3/2. पावर्स ऑफ पावर्स आर मल्टीप्लाइड तो 2 कैंसल. सो ये आ गया 9 raised to -3 upon 7 raised to -3 and this is nothing. ये उल्टा हो जाएगा तो 7 क्यूब upon 9 क्यूब. पावर्स को अगर आप लोग माइनस से प्लस करते हो तो सीधा इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, इसको न्यूमरेटर में. तो 7 क्यूब इज 343 और 9 क्यूब इज 729. सो दैट वाज योर फर्स्ट 7th का फर्स्ट. अब देखो 7th का सेकंड बच्चों 14641 होल रेज़ टू 0.25. अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 14641 होल रेज़ टू 25/100. 0.25 को डेसिमल की जगह मैंने फ्रैक्शंस में लिखा. ओके, नाउ व्हाट कैन आई स्ट्रेट अवे राइट लाइक दिस. ये हो गया 14641 होल रेज़ टू, ध्यान से, हां, होल रेज़ टू 1/4 25 is 25 4 एंड 11 टू द 4th पावर अगर किसी को याद हो तो इट इज नथिंग बट 14641. सो ये हो गया 11 टू द पावर 4 होल रेज़ टू 1/4 4 4 का आंसर 11. ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 11 का 4th पावर 14641 होता है. देन नेक्स्ट थर्ड देखो बच्चों, थर्ड इज 32/243 होल रेज़ टू -4/5. ठीक है, नाउ ऐसे टाइप के सब में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5th पावर में लेके आएंगे. तो ये होगा 2/5/3/5 होल रेज़ टू -4/5. फिर मैं क्या लिखूंगा 2/3 होल रेज़ टू 5 होल रेज़ टू -4/5. 5 कैंसल. तो ये हो गया 2/-4 upon 3/-4. उल्टा कर दो, कन्वर्स, तो ये will be 3/4 whole raised to 2/4. 3/4 81, 2/4 3/4 is 81, 2/4 is 16. Moving ahead, major sum number 7 का 4th and last 776 upon 243 whole raised to -3/5. अब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ये 1296 वाला कहां गया सम, ये था 6 टू द पावर 4. ठीक है, तो 1296 में अब ध्यान देना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ 1 मोर टाइम तो 6 6 36, 9 6 54 and 3 57, 2 6 12 and 5 is 17, 6 1 6 and 1 7. 776 मतलब ये क्या है, 6 टू द पावर 5 होल अपॉन 3 टू द पावर 5 होल रेज़ टू -3/5. अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना. 6 अपॉन 3 होल रेज़ टू 5 होल रेज़ टू -3/5. 5 का तो आंसर आया 6 अपॉन 3 होल रेज़ टू -3. पहले अंदर कट कर लेते हैं, 3 1 3 2 तो 2
रेज टू माइनस 3, आंसर 1/8 ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो होगा वो ऐसा लिखा जाएगा 1/2 क्यूब, which can be written as 1/8. So that was your major sum number 7, बच्चों. Moving ahead, last sum of your today's exercise, मतलब today's homework, major sum number 8. Major sum number 8. Evaluate करना है 4/216 whole raised to minus 2/3 plus 1/256 whole raised to minus 3/4 plus 2/243 whole raised to minus 1/5. ऐसा सम हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस बुक, नवनीत की प्रैक्टिस बुक में देखा है. तो ये मैं ऐसा लिखूंगा 4/6 का क्यूब होल रेज़ टू माइनस 2/3 प्लस 1 ये है 4 to the power 4 होल रेज़ टू माइनस 2 और ये है 3 रेज़ टू 5 होल रेज़ टू माइनस 2. 5 कट 4 कट 3 कट 4/6 रेज़ टू माइनस 2 प्लस 1/4 रेज़ टू माइनस 3 प्लस 2/3 रेज़ टू माइनस 1. ये सब ऊपर चले जाएंगे तो 4 into 6 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 2 into 3. 4 into 6 का स्क्वायर 4 into 36 प्लस 64 प्लस 6. 64 प्लस 6 is 70 और ये होगा 6 4s are 24 4 3s are 12 144 प्लस 70 करोगे तो 214 is your answer to 8 का फर्स्ट बच्चों. Then second देखो 64/125 whole raised to minus 2/3 plus 256/625 whole raised to minus 1/4 plus 3/7 whole raised to 0. Anything raised to 0 is 1, so plus 1. बहुत ही सिंपल. 3/7 whole raised to 0. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 1 is anything. ये याद रखना. Then इसको मैं ऐसा लिखूंगा 4 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब होल रेज़ टू माइनस 2/3 प्लस 4 to the power 4 5 to the power 4 होल रेज़ टू माइनस 2. ठीक है. अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4/5 होल रेज़ टू 3 होल रेज़ टू माइनस 2/3 प्लस 4/5 होल रेज़ टू 4 होल रेज़ टू माइनस 1/4 प्लस 1. 3 कैंसिल 4 कैंसिल. अब देखो ये -2 है तो मैं इसको स्ट्रेट अवे कन्वर्ट कर सकता हूं. डेफिनेटली यस. तो ये होगा 5/4² प्लस ये होगा 5/4 प्लस 1. सो एलसीएम आएगा आपका 16 क्योंकि ये है 25. चलो एक स्टेप कर देते हैं. 25/16 5/4 प्लस 1. ठीक है. एलसीएम आ गया 16 25 plus 20 plus 16. So 25 plus 20 is 45. 45 plus 16 is 61/16. And that's the end of your 8th sum number 2. ठीक है. Then let's begin again with your sum number 3rd. देखो उसी में 81/16 whole raised to minus 3/4. फिर ये ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 25/9 होल रेज़ टू माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 होल रेज़ टू माइनस 3. ओके. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सबसे पहले लीस्ट प्राइम फैक्टर्स में डाल दो तो ये होगा 3 to the power 4 2 to the power 4 होल रेज़ टू माइनस 3. देन ये अंदर गया तो 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर होल रेज़ टू माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 होल रेज़ टू माइनस 3. आगे बढ़ते हैं. ये हो गया 3/2 होल टू द पावर 4 होल रेज़ टू माइनस 3. फिर ये है 5/3 होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय. अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप लोगों ने वो कन्वर्स सीखा होगा. तो ये होगा 2/5 होल रेज़ टू माइनस 3.
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मेथड आप लोगों ने अपने प्रीवियस कंडक्ट्स में पढ़ी होगी। जब भी डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर का नीचे हो जाता है। अब देखो 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो अब क्या आया ध्यान से देखना, 3/2 होल रेज़ टू -3। फिर अब सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 5/3 होल रेज़ टू -3 एंड 2/5 होल रेज़ टू -3। अब सब पावर्स को हम लोग पॉजिटिव करेंगे। पावर्स को अगर पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, सबको कन्वर्ट कर दूंगा या कन्वर्स में ले लूंगा। तो ये हो गया 2/3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5/2 होल क्यूब। पावर्स को ऐसे ही लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 का क्यूब 27 इंटू 3 का क्यूब 27 अपॉन 5 का क्यूब 125 5 का क्यूब 125 अपॉन 8 सब कुछ कैंसिल। सो आंसर इज 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 आता है सब कुछ कैंसिल करने पर, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो और सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो आंसर आता है 0। ये खास ध्यान रखना। ओके, एंड लास्ट सम। Okay, last sum 25 5/2 multiplied by 729 whole raised to 1/3 whole divided by 125 whole raised to 2/3 into 27 raised to 2/3 into 8 raised to 4/3। चलो सॉल्व करेंगे स्लोली। तो ये होगा 5 का स्क्वायर 3/2, ये होगा 9 का क्यूब होल रेज़ टू 1/3, फिर ये होगा 5 का क्यूब होल रेज़ टू 2/3, ये होगा 3 का क्यूब होल रेज़ टू 2/3 और ये होगा ये वाला 2 क्यूब होल रेज़ टू 4/3। सब पावर्स नीचे के कट हो जाएंगे तो बचा क्या 5 क्यूब इनटू, इसको मैं 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली, अपॉन ये हो गया 5 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर इनटू 2 टू द पावर 4। अब ये देखो 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर कैंसिल, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5⁻3 - 2 और नीचे बचा 2⁻4। सो 5⁻3 - 2 इज 5 और 2⁻4 इज 16। सो योर फाइनल आंसर इज 5/16। ठीक है, सो दैट्स इट। 5:5 है, सॉरी नॉट 3, तो यहाँ पे 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, तो 3 की जगह 5 - 2, तो 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 25 और 2 is 60। सो दैट्स द एंड ऑफ योर 5 क्यूब बचेगा 125/16। So that's the end of your exercise 1G part 1. Major 8 sums we have completed. So if you have gone through this video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel and bell icon be press kar do so that you do not miss any single video of mine for 9th standard educational videos. Thank you very much. I am signing off. Bye bye students.